Hello guys, so this video will basically tell us how to numerically derive a multiple linear regression equation. ठीक है, so let us continue with our same example जो हमने कल जो last video में discuss किया था, that wages are a function of education. Wages are a function of education and years of experience. Wages are a function of education and years of experience. So let us formally define a problem statement. So the question is, consider a sample of five persons randomly drawn from a large firm. Consider a sample of five persons randomly drawn from a large firm. Let Y be the annual salaries. Y is the annual salary in thousands of dollars. I'll just explain what do we mean by this. In thousands of dollars. X2 is the years of education post high school. And X3 is the years of experience with the firm. X3 is the years of experience with the firm. Okay, so we have the following data. So you have values of Y, X2 and X3. So the values of Y are 30, 20, 36, 24, 40. The values of X2 are 4, 3, 6, 4, 8, and the values of X3 are 10, 8, 11, 9, 12. So we have to find, the question is, you have to find the regression equation and interpret the slope and intercept coefficients. So you have to find the regression equation and interpret the slope and intercept coefficient. So just to explain you the data, so Y is wages in thousands of dollars. So basically if I say 30, so that means it is $30,000, 20, $20,000, 36 is $36,000. ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, मैग्नीट्यूड रिड्यूस करने के लिए, वी हैव टेकन दैट Y को आपका यूनिट क्या है, यूनिट इज थाउजेंड ऑफ डॉलर. ठीक है, so you have to find out the regression equation. तो regression equation के लिए आपको, so you need the values of beta 2 hat, beta 3 hat and obviously beta 1 hat, your intercept terms. ठीक है, so last equation, last video में we had derived the formula for beta 2 hat and beta 3 hat. So what are the formulas for beta 2 hat? ही आपको बस याद रखना है. So it is equal to summation yx2 summation x3 square minus summation yx3 summation x2 x3 upon summation x2 square
summation x2 square summation x3 square minus summation x2 x3 whole square. ठीक है, so this is the formula for beta 2 hat. Here you have to remember, so it's an easy formula. यहाँ पर y x2 है, यहाँ x3 square है, यहाँ y x3 है, x2 x3 है, और नीचे पहले समेशन x2 स्क्वायर समेशन x3 स्क्वायर और फिर समेशन x2 x3 होल स्क्वायर है. ठीक है, और बीटा 3 हार्ट के लिए क्या होगा, कल आपको लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जहाँ जहाँ आपका x2 है वहाँ आप x3 कर दोगे. ठीक है, तो बीटा 3 हार्ट में क्या होगा, जैसे यहाँ x2 था तो अब यहाँ हो जाएगा x3 समेशन y x3 समेशन x2 स्क्वायर माइनस समेशन y x2 समेशन x2 x3, और डिनोमिनेटर क्योंकि सिमेट्रिक है आप उसको 2 लिखो 3 लिखो कहीं पर भी तो वो सेम ही रहेगा, तो डिनोमिनेटर इज सेम ओनली, minus summation x2 x3 whole square. Is this clear? Now so you have to remember here the beta 2 hat का एक बार हम फॉर्मूला देख लेते हैं. तो बेसिकली x2 x3 क्या है, तो x2 are deviations from mean of x2 वेरिएबल. ठीक है, तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है माइनस जो x2 सीरीज का मीन है. y2 क्या है, सॉरी x3 क्या है, आपकी जो x3 वाली सीरीज है माइनस उनका जो मीन है. ठीक है, सिमिलरली स्मॉल y क्या है, आपकी y वाली सीरीज में से आपने y बार सब्ट्रैक्ट कर दिया. बेसिकली यहाँ पर I है, आप लगा सकते हैं टू डिनोट इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन. द सब्सक्रिप्ट I डिनोट्स इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन. इज दिस क्लियर? तो अगर आपको जो है बीटा 2 हैट कैलकुलेट करना है तो आपको ये y(x2), ठीक है, summation x3 square y x3 x2 x3 and you need on denominator तो सेम ही रहेगा, आपको दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, is this clear? So let us now do the calculations for this particular numerical. I hope this is clear. ठीक है, so wages are a function of education and years of experience. So education is post high school and years of experience with the firm. So मतलब 12th के बाद 4 साल की एजुकेशन आपकी और है, या 3 साल की है, 6 साल की है, 4 साल की है, या 8 साल की. Is this clear? So let us now do the calculations. So you have y x2 and x3. y की क्या वैल्यूज है, 30 20 36 24 40. x2 की क्या वैल्यूज है, 4 3 6 4 8, एंड x3 की क्या वैल्यूज है, 10 8 11 9 12. तो दीज आर द वैल्यू. ठीक है, तो अगर आपको जो है सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले फाइंड आउट व्हाट इज योर x2 सीरीज, स्मॉल x2 डिविएशन फ्रॉम द मीन. तो उसके लिए आपको क्या निकालना है, x2 माइनस x बार 2, x2 माइनस x बार 2. तो पहले आपको तो x बार 2 निकालना पड़ेगा. तो इसका अगर आप सम करोगे x2 का तो क्या आ रहा है आपका, 4 + 3 7 13 13 + 4 17 and 8 25. ठीक है, तो x बार 2 क्या है, 25/5, so which is equal to 5. ठीक है, सिमिलरली आप x बार 3 निकालोगे तो अगर आप x3 सीरीज का सम करोगे तो क्या आ रहा है, 10 + 8 18 18 + 11 29, then 29 + 9 is 38 and 38 + 12 is 50. ठीक है, तो x बार 3 is 50 divided by 5, it is equal to 10. Is this clear? ठीक है, तो x2 निकालोगे फिर x3 निकालना है आपने. तो x2 सीरीज कैसे आएगी, ऑब्जर्वेशन माइनस मीन. तो 4 माइनस मीन कितना है आपका, मीन इज 5, तो 4 minus 5, it is equal to -1. Similarly, you will get -2 -1 1
sorry, -1, -2. So -1, -2, then 6 minus 5, 1, 4 minus 5 again -1, and you have 3 here. ठीक है. x3 की क्या वैल्यूज होंगी कि उसमें मीन कितना है 10. तो 0, -2, 1, -1 and 2. तो ये आपकी x3 की वैल्यूज हो गई. एंड यू ऑल्सो नीड वैल्यूज ऑफ स्मॉल y. यू ऑल्सो नीड वैल्यूज ऑफ स्मॉल y. तो y का मीन क्या होगा? y का अगर मीन जो है हम कैलकुलेट करेंगे तो 50, 40, 90 प्लस 60. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 150. ठीक है. तो y बार क्या होगा? तो y bar is 150 by 5 which is equal to 30. 150 by 5 which is equal to 30. ठीक है. So y is similarly y minus 5 bar which is 30. So 30 minus 30 is 0. तो पहली वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट वैल्यू होगी आपकी -10. Then you'll have value 6, -6 and 10. 6 minus 6 and 10. Is this clear? ठीक है. Now what all values you need? अगर आप जो है बीटा 2 हैट और बीटा 3 हैट के फॉर्मूले देखोगे तो बीटा 2 हैट के लिए आपको चाहिए y(x2). ठीक है. y और x2 को मल्टीप्लाई करना है. देन यू नीड x3 स्क्वायर. ठीक है. आपको चाहिए y(x3). यू नीड x2 x3, y(x2 x3 स्क्वायर, y(x3 x2 x3). एंड क्योंकि बीटा 3 हैट में एक एडिशनल और यूज होगा, यू विल आल्सो नीड x2 स्क्वायर. यू विल आल्सो नीड x2 स्क्वायर. ये सारी वैल्यूज आपको चाहिए होंगी अपने फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है. तो मैं इनको नीचे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस. तो आप जो है प्लीज़ अपने जो है नोटबुक में इनको कैलकुलेट करके देखना. तो यू हैव x2 स्क्वायर, यू नीड x3 स्क्वायर, you need x2 x3, you need x2 x3, you need yx2, you need yx3. ठीक है. यही वाली वैल्यू से हमने लिखी थी. यू नीड yx2, yx3, x2 x3, x3 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर. ठीक है. तो जैसे फर्स्ट x2 जो है आपका -1 है तो x2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1. ठीक है. देन 4, 1 1 9. ठीक है. 1 4 1 1 9. देन x3 स्क्वायर इज 0, 4 1 1 4. x2 x3 is 0, 4 1 1 6. yx2 is 0, 20, 6 6 30. yx3 is 0, 20, 6 6 20. ठीक है. अब आपको इनका सम चाहिए क्योंकि पूरे जो दोनों फॉर्मूले में समेशन इन्वॉल्व है. तो समेशन x2 स्क्वायर जो आ रहा है वो है 16. समेशन x3 स्क्वायर है वो है 10. समेशन x2 x3 है वो है 12. समेशन yx2 is 62 and summation yx3 is 52. Summation yx3 is 52. ठीक है. आई हैव द कैलकुलेशन का क्लियर. ठीक है. तो बीटा 2 हैट क्या होता है? तो बीटा 2 हैट इज summation yx2 और summation yx2 summation x3 स्क्वायर माइनस summation yx3 summation x2 x3 upon summation x2 square summation x3 square minus summation x2 x3 whole square minus summation x2 x3 whole square. ठीक है. Now so if you plug in the value summation, जैसे summation yx2 क्या है? summation yx2 is 62. So just plug in the value, so you'll get 62 10 minus 52 12 upon 16
10 माइनस 12 स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज समेशन x2 x3 आपका क्या आ रहा है, समेशन x2 x3 12 है, तो 12 स्क्वायर. If we solve this, so you'll get 620 minus 64 upon 160 minus 144. Okay, so this is minus 1 by 4 is equal to minus 0.25. Minus 0.25. Okay. Beta 3 hat is equal to 1652 minus 6212 upon 16. So it is coming out to be 832 minus 744 by 16. So it is equal to 5.5. Is equal to 5.5. So next beta 1 hat कैसे निकालते हैं? So it is equal to y bar minus beta 2 hat x bar 2 minus beta 3 hat x bar 3. तो ये सारी वैल्यूज हैं आपके पास. y bar is 30 minus beta 2 hat हमने निकाला minus 0.25, 5 minus 5.5, 10. So this actually comes out to be minus 23.75. Minus 23.75. ठीक है. I hope the calculation for beta 2 hat, beta 3 hat and beta 1 hat are clear. So that means what is the regression equation? Thus the regression equation is, so thus our regression equation is yi hat is equals to minus 23.75 minus 0.25 x2 plus 5.5 x3 plus 5.5 x3. Okay. So let us now interpret this equation. So how do we interpret the intercept? So when x2 is equals to x3 is equals to 0. Okay. So this means minus 23.75 is the salary one would get, or it is the expected salary, because this is what you are predicting. It is the expected salary one would get with no experience, and only high school education. With no experience and only high school education. So because see x3 equal to 0 का मतलब so x2 is years of education past high school, मतलब 12th तो पास कर ही लिया, तो x2 is equal to 0 का मतलब है कि 12th के बाद कुछ भी एजुकेशन नहीं है. x3 is equal to 0 का मतलब इस केस में क्या है कि कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है उसको. So this is basically a negative salary. So in this case, as you can see, intercept doesn't make sense. So in this case, intercept doesn't make sense. ठीक है. Now a reason why intercept doesn't make sense है, और यहाँ पर intercept क्यों जो है कुछ जो है relevant नहीं obtain हुआ. See, आपके जो डेटा में x2 और x3 की वैल्यूज हैं, वो क्या क्या वैल्यूज हैं? 4, 10, 3, 8, 6, 11, 4, 9, 8, 12. ठीक है. तो जब आप बोल रहे हो कि x2 is equals to 0, x3 is equals to 0, मतलब आप एक ऐसा सिनारियो प्रिडिक्ट कर रहे हो. प्रिडिक्ट किस पे कर रहे हो? इस डेटा से. अब इस डेटा में कोई भी एक ऐसी जो मतलब आपको ऐसी वैल्यूज नहीं है जो कि जो है 0 के क्लोजर हो. ठीक है, जो कि 0 के क्लोजर हो. तो बेसिकली हमने जो एक्सपीरियंस कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहा है? 8 to 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले वर्कर्स हमने लिए हैं. ठीक है. सिमिलरली आपकी जो एजुकेशन है, एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? 3 to 8 ईयर्स एजुकेशन पास्ट हाई स्कूल. ठीक है. तो बेसिकली जो आपका सैंपल है
वो पूरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है फॉर ऑल द पीपल वर्किंग इन द फर्म. दिस सैंपल is not representative of all the people working in the firm. क्योंकि अगर आपने अपने सैंपल में ऐसे भी लोग लिए होते जिनका 0 years ऑफ एजुकेशन होता है, 0 years ऑफ एक्सपीरियंस होता है, 1 year ऑफ एजुकेशन, 0 years ऑफ एक्सपीरियंस, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते, तब इंटरसेप्ट उस केस में नेगेटिव नहीं आता. बट क्योंकि आप एक ऐसे डेटा पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रिडिक्शन किस वैल्यू के लिए, जब ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और एजुकेशन 0 है, तो प्रिडिक्शन तो इस सैंपल डेटा पे होगा ना, बट योर सैंपल डेटा इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर वर्कफोर्स ऑफ दैट फर्म. ठीक है, इसलिए इस केस में इंटरसेप्ट डजंट मेक मच सेंस. नाउ so let us now interpret what is, so your beta 2 hat is equals to minus 0.25. Your beta 2 hat is equals to minus 0.25. So this basically means that as, so ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है. x2 क्या है आपका, years of education past high school. So this basically means that as years of education past high school increase by 1 unit, the average salary decreases. Why decreases? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आया. The average salary decreases by 0.25 units. The average salary decreases by 0.25 units. Now, what is the unit here? Unit is $1,000. The unit is $1,000. So you can also say that average salary decreases by 0.25 into $1,000. So basically, it decreases by $250. It decreases by $250. But what is the important here? ये मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है, तो यू और हमने आपको, अगर आपको कल याद होगा कि मैंने आप जो है इसको कैसे डिराइव किया था, दैट डेल्टा वाई आई हैट इज इक्वल्स टू बीटा 2 हैट डेल्टा x2 प्लस बीटा 3 हैट डेल्टा x3. तो अगर आप सिर्फ बीटा 2 हैट को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो उस केस में आप डेल्टा x3 को 0 मान रहे हैं, क्योंकि आप तभी उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे. ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि बीटा 2 हैट की वैल्यू जो है वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा x2 हो. ये तभी पॉसिबल है जब डेल्टा x3. तो इंटरप्रिटेशन के लिए आप ये कह रहे हैं कि as years of education past high school increase by 1 unit, the average salary decreases by 0.25 units with $250, keeping the impact or keeping the years of experience constant. ठीक है, क्योंकि आपने years of experience को constant रखा, आपने x3 को constant रखा, तभी जो है आप बोल सकते हो कि बीटा 2 हैट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा x2. ठीक है, अगर years ऑफ एजुकेशन भी चेंज हो रहा है, years ऑफ एक्सपीरियंस भी चेंज हो रहा है, तो इम्पैक्ट जो होगा वो बीटा 2 हैट डेल्टा x2 प्लस बीटा 3 हैट डेल्टा x3 होगा, ना कि सिर्फ बीटा 2 हैट डेल्टा x2 होगा. आई होप मैथमेटिकली दिस इज क्लियर. ठीक है, तो द अदर इंटरप्रिटेशन, आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो कि सपोज देर आर 2 एम्प्लॉइज, इफ देर आर 2 एम्प्लॉइज with the same level of experience, but employee A has, with the same level of experience, but employee A has 1 year of education more than B. So in that case, employee A's salary will be $250 less
than that of B। ठीक है, कि आपने 2 एम्प्लॉयज लिए जिनके जिनका जो है सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है, लेकिन उसमें से एक जो है उसका जो है 1 साल ऑफ एजुकेशन ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू। तो जिसका ज़्यादा है उसकी जो है, क्योंकि रिग्रेशन कोफिशिएंट यहाँ पे नेगेटिव आया, ठीक है, क्योंकि रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव आया तो उसकी सैलरी जो है $250 कम है, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग विच इज अनरियलिस्टिक। ऐसा कुछ कंपनीज करते हैं कि आप बोलते हैं ना आप ओवर क्वालिफाइड हो, हम आपको इतनी सैलरी नहीं दे सकते। तो बेसिकली इट ऑल्सो मीन्स, देखो आप अगर सिर्फ इक्वेशन के कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड देखो तो ये 5.5 है, ये -0.25 है। तो बेसिकली दिस फर्म वैल्यूज एक्सपीरियंस मोर देन ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। जितने ज़्यादा ईयर्स ऑफ एजुकेशन होगा, इनफैक्ट उसको जो है कम वैल्यू कर रही है, उसको कम वैल्यू कर रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक असम्पशन है, ठीक है। नाउ इज दिस क्लियर? So let us interpret third, your beta 3 hat, which is 5.5, which corresponds to what? Which correspond to years of education. Oh, sorry, which correspond to years of experience. So what you can say that as years of experience increase by 1 unit, average wages, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, average wages increase by 5.5 units. So what is the unit here? It is $1,000. So 5.5 into $1,000. 5.5 into $1,000. So this basically means $5,500, keeping the impact of years of education constant, keeping the impact of years of education constant। कि अगर आपने years of education को constant रख दिया, ठीक है, अगर आपने years of education का constant रख दिया, तो अगर जो है years of experience 1 यूनिट से बढ़ रहे हैं तो सैलरी जो है $5,500 से बढ़ रही है, ठीक है। तो दिस बेसिकली द अदर इंटरप्रिटेशन है, 2 एम्प्लॉयज हैं ए और बी, ठीक है, दोनों की सेम लेवल ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, दोनों ने जो है 12th के बाद सपोज 5-5 साल पढ़ाई की है, लेकिन ए का जो एक्सपीरियंस है वो एक साल ज़्यादा है कंपेयर टू बी, ठीक है, 1 साल ए का एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ज़्यादा होने का मतलब सपोज ए का है 8 साल का एक्सपीरियंस, बी का है 7 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, दोनों ने जो है 12th के बाद सेम लेवल ऑफ एजुकेशन है उनकी, सेम इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। तो ए की जो सैलरी होगी, ए सैलरी will be $5,500 more than B's सैलरी। ए की जो सैलरी होगी वो $5,500 मोर होगी बी की सैलरी से, ठीक है। आप सपोज कोई मुझसे पूछेगा अगर कि ईयर ऑफ एजुकेशन भी 1 से बढ़ रहा है और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी 1 से बढ़ रहा है, तो उस केस में क्या चेंज होगा? तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया दैट डेल्टा वाई आई हैट is equals to beta 2 hat delta x2 plus beta 3 hat delta x3, ठीक है। तो इन दैट केस डेल्टा x2 भी 1 है और डेल्टा x3 भी 1 है, तो बीटा 2 हैट कितना आया आपका -0.25, बीटा 3 हैट क्या है 5.5, तो ये कितना हो गया $5। यानी कि अगर किसी का ईयर ऑफ एजुकेशन 1 साल से बढ़ रहा है और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी 1 साल से बढ़ रहा है, तो उसकी सैलरी पे नेट इम्पैक्ट क्या आ रहा है? सैलरी सॉरी नॉट $5, तो उसकी सैलरी 5 यूनिट से बढ़ रही है। एंड व्हाट इज द यूनिट? यूनिट इज $1,000, तो उसकी सैलरी जो है $5,000 से बढ़ रही है। जब हम सिर्फ बीटा 2 हैट और बीटा 3 इंटरप्रेट करते हैं तो हमें एक को कांस्टेंट रखना पड़ता है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं तो आपने बीटा 2 हैट भी लेना पड़ेगा, बीटा 3 हैट भी लेना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर। So this completes your numerical derivation of a multiple linear regression equation.